Hello, I'm Sunil Guleria, and today I want to discuss with you that is how we can use for loop in JavaScript. And to use the for loop in JavaScript, we have to start with the HTML code. And as you know, we have written here that is title and head. And then we can start, suppose, body tag, and then you have to close it over here, that is body. And I'm not going to explain you that is what is the role of for loop and why we should use the for loop. Like just I want to describe you that is for loop is used to repeat the number of statements in your JavaScript. Now the question is, where should I use this for loop? So no doubt we know that we have to use the script tag, but now and today I want to use this script tag. Means if we want to add the JavaScript, so I have to use the script tag, but I am going to use this time script tag into your head part. And after closing the title tag, so after closing the title tag, you start your script, and then now you have to write your code over here, and that code is for the for loop. And how we can use that for loop, so you have to just concentrate on this. You have to use the for keyword, and then here you have to use one variable. Let's suppose I want to start from I is equal to 1, and then you can use like this I less than equal to we can say that 5, and then semicolon, then I plus plus. Because before this you have to think about that is the how many types of operators are available here. And if suppose you are not new for the programming language, then you and if you have done suppose any other language like C, C++, any other language, so you would be aware about that is the use of the loops. And moreover मुझे ये लगता है कि जब आप फॉर लूप यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, एंड फिर सेमीकोलन, देन सेकंड पार्ट इज नोन एज योर condition, and the third part is known as your that is increment operator is being used over here. अब इसके बीच में ये जो ब्लॉक है, इसके बीच में जो कुछ भी आप लिखेंगे दैट विल बी रिपीटेड, सपोज दैट इज फ्रॉम 1 to 5, सो ये आपका एटलीस्ट 5 बार जो है ये रिपीट होगा. अब व्हाट डू यू वांट टू रिपीट ओवर हियर? सो मैंने आपसे पीछे भी वीडियोज में डिस्कस किया था कि कुछ हम एक पॉपअप बॉक्सेस हम यूज़ करते हैं या बॉक्सेस हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट. तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम एक मैसेज दे सकते हैं, और आप यहाँ लिख सकते हैं दैट इज़ व्हाट हेलो, एंड आई जस्ट वांट टू यूज़ हियर हेलो कंप्यूट हेल्प. अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, दिस इज आई हैव रिटन ओनली वंस, मैंने एक बार लिखी है. लेकिन नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ये एक बार प्रिंट होगी, और फिर यहाँ से कंट्रोल जो आपका फिर यहाँ आई प्लस प्लस पे जाएगा, और वो इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, फिर यहाँ से कंट्रोल आपका यहाँ पर आएगा, और वो चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5. इट वुड बी ट्रू, इफ इट इज ट्रू कम इन साइड. सो ये आपका ब्लॉक जो है वो 5 टाइम्स रिपीट होने वाला है. सो फॉर लूप आपके पास जो जावास्क्रिप्ट में भी है वो भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम सी में भी फॉर लूप को यूज करते हैं. अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि ये जो आई है, क्या ये हमने डिक्लेयर किया है कि नहीं? तो इसमें डिक्लेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आई को डिक्लेयर कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसी समय उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, और जो वैल्यू हम उसको असाइन करते हैं उस वेरिएबल की डेटा टाइप वही बन जाती है. तो अभी हम इसको रन करके अगर देखना चाहेंगे तो हमारे पास जो है हेलो कंपेयर 5 बार आना चाहिए. सो लेट अस सी, वी कैन ट्राई दिस. और आप ये देख सकते हैं, हम इसको कंट्रोल एस करेंगे, और ये आपका कहाँ सेव्ड है? सी गुलेरिया एंड जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, उसमें हमारे पास फॉर लूप in javascript.html has. So I'll go into my explorer, that is now for this you will go for C, then you will go for Guleria, and then you will go forward, that is JavaScript.
you can use here, that is the JavaScript. And here you have this because this is your text file and this is your HTML file, because here we have the icon of this is Microsoft as web browser. Right click over here. If you want to open this in this Edge, you can open, otherwise you can open in Google Chrome also, that is up to you. Now here you can watch, this is your file, that is .html, and hello CompuHelp. This is first time, then this is second time, then this is third time, and up to 5 times it is displayed over here. And now after this, what do you want to say? You just go into the code, and if you want to add something else also into this, so what I want to add over here, suppose hello CompuHelp I have written, and then I'm going to use here plus, and I want to say I. Now we have to check the output. Control S, it is very important to press the Control S, so that before executing this, or before opening it into the web browser, you have to save, as well as now you have to refresh this. And if you will refresh this, you can find out that is hello CompuHelp 1, and then hello CompuHelp 2 is there, CompuHelp 3 is there, CompuHelp 4 is there, and CompuHelp 5 is there. So what happened over here, अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास क्या किया उसने, i की जो वैल्यू है वो साथ में इसके कनकैटिनेट कर दी है। जो भी i की वैल्यू होगी, तो पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी। अब अगर आप नोटिस करना चाहते हैं कि यार ये 1 आ रहा है और जो मैसेज है मेरा वो नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, तो आप इसमें प्लस कर सकते हैं, और आप इसमें डबल कोट्स लगा के आप इसमें एक टैग लगा सकते हैं। और वो टैग मैं ट्राई करता हूँ यहाँ कि आप BR टैग लगा दें, डबल कोट्स के अंदर आप लगाएं। तो BR हम जानते हैं कि ये एक पेज ब्रेक यूज़ होता है, और जो हम पेज ब्रेक कह रहे हैं, ये क्या करता है कि आपके कर्सर में उसमें पेज में एक ब्रेक डाल देता है। हमने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद हम इसको फिर रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कि जो आपका पेज के ऊपर आउटपुट है वो आपकी CompuHelp 1, CompuHelp 2, CompuHelp 3, CompuHelp 4 एंड CompuHelp 5 आपके पास आ गया। अगर हमने ब्रेक भी डाल दिया, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो ये हम जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं, और आपने मेरी हर एक लाइन बड़े ध्यान से सुननी है, और ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ आपको लर्न बाय प्रैक्टिस भी हैं, कुछ आप इसमें से सुनते भी जाएं, और कोई दिक्कत आती है तो आपको नंबर दिया जाता है वो 9915005347, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप इसको बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप टोटल बिगिनर हैं और फ्रेशर हैं, और जो लैंग्वेज करके आए हैं, उनके लिए तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि उन्होंने जस्ट ये देखना है कि फॉर लूप कैसे हम इसमें यूज़ करते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, और हम चाहेंगे कि आपके लिए हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस वीडियोस भी इसके साथ पैरेलल बनाते जाएं, जिसमें हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करते जाएंगे। लेट अस सी दैट इन फ्यूचर। अब हमने BR यूज़ किया, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट को ऐसे लेके चलें कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो HTML को रन टाइम पे प्रोसेस करती है। अगर आप समझ जाएं इसको तो ठीक है, नहीं समझें तो कोई हार्डली मैटर्स। तो अगर ये HTML को रिप्रेजेंट करती है, तो क्या मैं यहाँ पर कुछ और ट्राई कर सकता हूँ? जैसे मैं राइट लिख रहा हूँ, तो क्या मैं इसके अंदर H1 कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? और इस H1 को मैं कहाँ क्लोज करना चाहता हूँ? तो मैं चाहता हूँ कि इस H1 को मैं यहाँ क्लोज करूँ। अब BR की जगह मैंने यहाँ H1 लिखा है। तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें हम कोडिंग के थ्रू अब HTML रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि H1 टैग शुरू होगा, बीच में हेलो CompuHelp आ जाएगा, फिर वो कनकैट करेगा, i की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेगा, और फिर हमारे पास प्लस होगा, फिर प्लस होगा, और H1 क्लोज करेंगे। अब मैं इसको सेव करके इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। यू विल नोटिस कि अब जो आपका टेक्स्ट है वो हमारे पास क्या आ गया, हेलो CompuHelp आ गया। तो जो हेलो CompuHelp आया है वो थोड़ा सा हेडिंग 1 वाली, अगर आप रिकॉल कर सकें, आपके HTML में हेडिंग 1 जैसा होता है, तो वो हेडिंग 1 आ गया, और ये सारे के सारे हेडिंग्स वाले स्टाइल में आ चुके हैं हमारे पास। तो आप इसमें से जब आप प्रिंट करते हैं तो आप उसमें H1 हो, कोई भी किसी भी तरह का HTML टैग भी यूज कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी एग्जांपल आपकी फॉर लूप की जावास्क्रिप्ट में।
सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, और भी साथ में कुछ और वीडियोस भी फॉर लूप के ऊपर ऐड की जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच मी।